Now today let's start with chapter number 3, separation of substances. In this chapter I will tell you about how to separate different substances. We have different methods of separation like threshing, winnowing, ठीक है, hand picking. These are the different methods that I will tell you. Now you might have seen we have large number of materials like your water, sugar, salt, milk, tea, fruit, vegetables around you. These material or substance are used on daily basis. ये जो मटेरियल है, ये जो सब्सटेंसेज हैं, हम इनको डेली बेसिस पे यूज करते हैं. इन नेचर ओनली फ्यू सब्सटेंसेज अकर इन प्योर फॉर्म. मेनी एडिबल थिंग्स कमिंग फ्रॉम नेचर आर यूज्ड एज सच विदाउट एनी क्लीनिंग, बट देयर आर थिंग्स दैट वी विच नीड प्रॉपर क्लीनिंग. देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए होती है बिफोर मेकिंग देम एंड बिफोर यूजिंग देम. सो if we consider air, it is also a mixture of different gases. Water is also a mixture of various salts of different material. It is impure. If we talk about soil, it is mixture of various salt, organic matter and different chemical. Or most of the substances, what are these? These are your mixture, right? So there are many substances that contain more than one component, and the substance which contains one or more components, what are they called? They are called mixtures. So if you talk about the food items you get from nature, they too are impure in form. You need to peel off a banana skin. देखो हमें क्या करते हैं, जैसे हम बनाना खाते हैं तो पहले हम उसकी स्किन को निकालते हैं, पील ऑफ करते हैं, उसके छिलके को निकालते हैं, तब खाते हैं. So like this we have many vegetables also. First then peel off, then we cut and then we cook them. You have to remove their skin or separate their stems, leaves and other unwanted parts. Then you have to cut or wash them before cooking. In pulses or rice you have to remove stone or unwanted husk or chaff particles from them. आपने देखा होगा हम चावल साफ करते हैं तो हम हस्क निकालते हैं, ठीक है, हम छन्ने का यूज करते हैं और उससे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, निकालते हैं. Nothing is pure, it is natural form. Similarly there are many instances where you need to separate one substances from other. जहां से आपको क्या करना होता है, एक सब्सटेंसेस को दूसरे सब्सटेंस से सेपरेट करना होता है. The components of mixture always retain their property. वो हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं और आप उनको सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम ईच अदर. There are many processes that I will tell you later in the chapter. First is need for separation. Why there is need to separate the material from the unwanted thing? Why separation required? Sometimes you need to remove unwanted things like separating tea leaves from tea using strainer. You don't like chilies, देखा, फिर हम हाथ से क्या करते हैं, उनको निकालते हैं. हमें चिलीज अच्छी तो लगती नहीं है तो हम उन्हें फिर धीरे धीरे करके क्या करते हैं, अपने हाथों से निकालते हैं. Now separation is also done to obtain useful things such as obtaining butter by churning milk, separating cotton fibers from its seeds using cotton gin, a machine. The process by which unwanted or harmful components of mixture are removed to get a pure substance. जब हम हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, उसको रिमूव करते हैं प्योर सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, सेपरेशन. नाउ व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन? नाउ आई विल टेल यू वन बाय वन ऑल द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. फर्स्ट इज योर थ्रेशिंग. थ्रेशिंग आपने देखा होगा, एक हार्ड सा कोई सब वो होता है, जगह होती है, या कोई आयरन मतलब वुड भी होती है, या फिर कोई आपकी नॉर्मल जैसे हमारा फर्श होता है ना, इस पे लोग ऐसे ऐसे करके गेहूं के वो बोरी से होती है उसको मारते हैं, ठीक है. नाउ व्हेन द हार्वेस्टिंग पीरियड अप्रोचेस, द क्रॉप ऑफ सीरियल्स इज रेडी इन द फील्ड. इट इज द फर्स्ट कट फ्रॉम इट्स स्टॉक. और सेकेंड स्टेप इज रिक्वायर्ड, जिससे हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को रिमूव करते हैं, ठीक है. एंड थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन. मैंने क्या कहा, शेप से आप ग्रेन को बीट आउट कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, थ्रेशिंग. और ये 3 तरीके से करा जाता है. एक तो मैनुअल में से आपने उठाया उसको मारा, मैनुअल वे हो गया.
इन मैनुअल वे इन विच लेबर्स बीट्स द स्टॉक्स ऑन द ग्राउंड टू गेट द ग्रेन्स आउट ऑफ स्टॉक। वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे मारते हैं स्टॉक को और वो ग्रेन निकल जाती है। फिर सेकेंड वे क्या है, गेटिंग अ स्टॉक बाय अ क्रश्ड फीट ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स उस पे बुलक्स जो होती है ना उनको चलाया जाता है। इन दिस मेथड एनिमल आर मेड टू ट्रैम्पल इन द स्टॉक्स विद देयर फीट, और वो क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं। थर्ड इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड which is done with a machine called thresher। हम थ्रेशर एक मशीन है उसका यूज करते हैं, उससे ग्रेन को सेपरेट करते हैं। ये क्या है, आपके तीन मेथड्स मैंने आपको बताया, मैनुअल जिसमें हम लेबर की नीड होती है, सेकंड जिसमें हमें एनिमल की नीड होती है, और थर्ड इज मशीन दैट इज थ्रेशर। नेक्स्ट इज विनोइंग। ये मेथड है बेसिकली, इसका फार्मर यूज करते हैं जब इनको ग्रेन्स को निकालना होता है थ्रेशिंग से, ठीक है, जब ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क आफ्टर थ्रेशिंग। सो दे आर मिक्स्ड विद द शैफ एंड द सेकंड प्रोसेस इज टू सेपरेट दिस ग्रेन्स फ्रॉम द शैफ। इसको हम, इस मेथड को क्या कहते हैं, विनोइंग। In this method, property of density is used. Heavy things fall straight on the ground, while the things which are light। देखो जो heavy आपका ग्रेन होता है वो तो नीचे गिर जाता है ग्राउंड पे, और जो लाइटर मेटेरियल होता है वो हवा में उड़ जाता है। कभी आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा ऐसी धुंध सी हो जाती है जब विनोइंग हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ग्रेन। फार्मर्स जनरली stand at the higher level and throw a mixture of grains and husk from the height in the direction of wind, and the grains being heavy they drop vertically, वो vertically drop down हो जाते हैं। on other hand the husk being light in its weights is carried away by the wind and distance, where it also gets collected in a form of heat. This is how farmers separate grains from the husks, and this process is called winnow। आपने देखा होगा बहुत बार मम्मी लोग भी होती हैं तो गेहूं साफ करते हैं तो ऐसा करके हिलाती हैं, उसे छानती है, तो जो क्या होती है, जो हेवियर मटेरियल होता है तो नीचे की तरफ बैठ जाता है और जो लाइटर मटेरियल होता है वो उड़ जाता है। नेक्स्ट इज योर सीविंग। हम आटा छानते हैं उसे सीविंग ही कहा जाता है। इफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। सीविंग क्या करता है, अनवांटेड सीड्स और सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करता है। आपने कभी देखा होगा किसी घर बनता है तो वो क्या करते हैं, मिक्सचर को भी उसके, जैसे आपका रेत और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है वो उसको भी छानते हैं पहले, ठीक है, क्यों, जिससे जो अनवांटेड मटेरियल उससे बाहर आ जाए। द स्मॉलर कंपोनेंट पास थ्रू द पोर्स एंड सीव वेयर लार्जर कंपोनेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। ये क्या होती है, जो आपका लार्जर सब्सटेंस रह जाती है वो क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। अ सीव इज ऑफ्टन यूज्ड एट होम टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेरियस सब्सटेंसेस। सीव इज यूज्ड टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। सीव का हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को रिमूव करने। जैसे हम ब्रांड से हम फ्लोर बनाते हैं, ठीक है, क्रीम से मिल्क बनाते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सीविंग। नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग। आपने देखा होगा जब मम्मा लोग चावल साफ करती है, राइस को साफ करती है, तो उसमें जो पत्थर होता है उसको हाथ से उठा उठा के फेंकती है, तो उसे क्या बोला जाता है, हैंड पिकिंग। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम वांटेड सब्सटेंस, ठीक है, यूजफुल वन। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली टू रिमूव इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती है। इसको हम होम्स में यूज करते हैं क्या करने के लिए, आपके स्मॉल जो स्टोन्स होते हैं उनको रिमूव करने में, डर्ट रिमूव करने में, और अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करने में, लाइक दाल, राइस, व्हीट। इससे हम इम्प्योरिटीज निकालते हैं। It can be picked up manually. When impurities are at large scale, this method is not possible as it requires lot of time and concentration. इसमें क्योंकि टाइमिंग भी ज्यादा चाहिए और कंसंट्रेशन भी ज्यादा चाहिए। Then we have filtration. ये प्रोसेस होता है जिसको हम यूज करते हैं जब हम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को लिक्विड से सेपरेट करते हैं। क्या पास करके, द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस। In this process, filters are the medium of separation, and the thickness of the holes of filters depend upon the thickness of solid material. Like tea leaves, देखा है ना, हम जब चाय बनाते हैं तो छन्नी में छानते हैं, तो जो हेवी मटेरियल होता है, मतलब जो आपका
हैवी मटेरियल मान लीजिए या फिर आपका जो सॉलिड मटेरियल होता है वो तो ऊपर रह जाता है और लिक्विड आपका जो चाय होती है वो आपके छन जाती है कप में. So as a mud particles being minute will pass through the holes of sea. Mud can be filtered through a thin muslin clothes. In this method filtration is to get pure drinking water in our home. देखो हम पानी को भी छानते हैं बहुत बार. Now let's see the activity. To see how filtration is done using filter paper. हम filtration कैसे करते हैं filter paper का use करके. So take a beaker and add some mud in the beaker. Now mix it with water and make a muddy solution. आप क्या ले, एक बीकर लिए, पानी लो, उसमें मड को डालो, उसको मिक्स कर दो, ठीक है, मडी वाटर बनाना है. Now take a filter paper and fold it in the shape of cone and put in the funnel. आपको एक फिल्टर पेपर लेना है और उसको एक फनल की शेप में क्या करना है, मोड़ना है, उसको फनल में डालना है. Now fix the funnel into a clamp of stand and put a beaker under the outlet of funnel. फिर जो ये आउटलेट है इसमें आप इसको डालेंगे. देन पोर द मडी सॉल्यूशन इन फनल फर्स्ट, पोरिंग इट ऑन द ग्लास रॉड स्लोली. फिर आप धीरे धीरे उसको ग्लास रॉड में डालेंगे. द मड कैन नॉट पास थ्रू द फाइन होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर. और जो क्लियर वाटर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लियर वाटर दिख रहा होगा, तो हमें क्या दिखाई देगा, क्लियर वाटर दिखेगा. एंड द मड इज कलेक्टेड ऑन फिल्टर पेपर. दिस इज हाउ अदर सॉलिड इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स. किसके थ्रू, आपके फिल्ट्रेशन के थ्रू. Then we have magnetic separation. Let's talk about the magnetic separation. You know that certain material get attracted towards a magnet. This property of attraction towards the magnet, it is very useful in separation. और ये जो method है हम इसका use करते हैं क्या separate करने में, magnetic component of a mixture from non-magnetic component, right? Like iron object can be collected from garbage by using powerful magnet. आपने देखा होगा सड़क पे बच्चे घूमते रहते हैं बहुत बार, उनके हाथ में एक डंडा सा होता है, उसके नीचे मैग्नेट लगी होती है, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे उसको रोड पे चलाते रहते हैं. अगर वहां पे कोई मैग्नेटिक चीज होती है वो उस पर चिपक जाती है. देन वी हैव सेडिमेंटेशन. हैव यू सीन पल्सेस बीइंग वॉश्ड एट योर होम? व्हेन पल्सेस आर कैप्ड इन अ बाउल ऑफ वाटर, हम पल्सेस को रखते हैं, दालों को रखते हैं, दे सेटल डाउन एज दे आर हैवी. और जो डर्ट, इंसेक्ट और अदर लाइटर इम्प्योरिटीज होगी वो आपको फ्लोट होती हुई दिखेगी, ठीक है. जो गंदी चीजें होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, वो आपको ऊपर तैरती हुई दिखाई देंगी. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच आर हैवियर देन वाटर, दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैवी होंगे वो कंटेनर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा. That decantation, clear liquid above the sediments. What are they called? They are called supertenant. The clear liquids is generally poured off into another container without disturbing. इस process को क्या बोला जाता है? Decantation. Now, a modern equipment called separating funnel. They are used for separating oil, and this funnel allows heavier liquid to flow down into container when its top cook is open आफ्टर पुटिंग द मिक्सचर इन अ सॉल्यूशन. देखो क्या होता है, आपने सेंट और क्ले डाला, वो बॉटम में क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया. आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे सेटल डाउन. वहीं आप इसको पोर करोगे फनल से. एक स्टॉप कॉक आता है, क्या होता है, स्टॉप कॉक. दिस इज अ स्टॉप कॉक. आप इसमें डालेंगे तो डर्ट तो उसमें रह जाएगी और जो प्योर वाटर होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज process of obtaining drinking water. Now there are different processes. First is evaporation. What is evaporation? It is the process by which liquid changes into vapor state. जब liquid किस में change हो जाता है, vapor state में, इसको हम क्या कहते हैं, evaporation. इस method का हम use करते हैं क्या separate करने में, dissolved substances. Now in order to separate dissolved substances, means solute, you put in the solution on fire or keep it in the hot sun of high summer. The water slowly evaporates and solute is left behind. Water क्या होता है, evaporate करता है, जो solute होता है वो आपका नीचे की तरफ बैठ जाता है. Then this method is used to obtain common salt from sea water or from salt lakes on very large scale. The salty water is collected in shallow beds
in an open near surface and this salt is collected in heaps, purified and packed as it gets ready for consumption. और क्या हो जाता है, हम इसको, ये रेडी हो जाता है, आप इसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. देन इज लोडिंग. Many times you get muddy water from well, taps or other sources of drinking water. ये फ्रीक्वेंटली देखो, आपने देखा होगा जब होता है, जब बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है. सो सच अ मडी वाटर कैन बी मेड क्लियर बाय लोडिंग. आप इस मडी वाटर को लोडिंग, एलम का हम यूज करते हैं, हम फिटकरी कहते हैं, उसका हम यूज करते हैं वाटर को क्लीन करने में. इफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड आर वेरी फाइन, दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन. अगर पार्टिकल्स बहुत फाइन है, वो बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने में, बैठने में. In order to separate this impurity from the liquid, it is made to load, that is, its particles are made to get heavy and settle down at the bottom. तो इसके लिए हम एलम का यूज करते हैं. जनरली इट इज क्विकन दिस प्रोसेस. एलम जिसे हम फिटकरी कहते हैं, ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं. क्या होती है, सॉल्यूबल होती है. नाउ नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन. So this method is used to obtain solids in their purest form. Shape of crystal. The solution is at first heated and they get suspended impurities out of it. After that, solution is allowed to cool down slowly. As it cools down, the crystal of solute start accumulating the surface of the solution. And जो size of the particles है, they are formed depends upon cooling rate and these crystals have well defined regular shapes. और जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनकी क्या होती है, वेल डिफाइंड रेगुलर शेप होती है. यू कैन ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक वी हैव एलम, शुगर, कॉमन सॉल्ट एंड ब्लू विट्रॉल. ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, इनका हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. देखो हम मिल्क से क्या निकाल रहे हैं, क्रीम निकाल रहे हैं. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन. So learn about a centrifugation and churning process. You use many milk products like cream, butter, cheese. Have you ever wondered how these milk products are made? ये कैसे बनाए जाते हैं, कभी आपको पता? देखो ये बटर निकाल रही है, अब तो मशीन आने लगी है, उससे हम क्या करते हैं, एकदम से उसको चलाते हैं और बटर निकाल लेते हैं. Now this process is carried out to separate cream from milk, which later may be used for making butter or solid cream. This process of agitation of milk is termed as churning. इस process को क्या बोला जाता है, churning. The word centrifugation means to create a motion that makes a solid and liquid fly off towards the wall of vessel. This method is used to separate a constituent that is suspending liquid inside a liquid and form particles. Now centrifuge is used to separate blood cells from the plasma cells and World Bank follows this technique. World Bank is जो होते हैं वो इस टेक्निक का ही फॉलो करते हैं बिफोर सॉर्टिंग डोनेट ब्लड. ठीक है, जब वो सॉर्टिंग करते हैं ना, जो ब्लड डोनेट होता है उसकी. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. आप देख रहे हैं हम इसमें सॉल्यूशन डाला है, यहाँ पे नीचे क्या होता है, बर्नर होता है. ये आपकी यहाँ पे एक वाटर इनलेट होती है. ठीक है, आप इसको लगाएंगे तो ये क्या करता है, यहाँ से आपका ये कंडेंसर होता है बीच में, ये वाटर को कंडेंस करता है और यहाँ पे क्या भेजता है, प्योर वाटर. भाई हमने इसको बर्नर को जलाया, ये सॉल्यूशन है, ये पानी यहाँ से कंडेंस होके कहाँ जाएगा, आपका नीचे की ओर जाएगा. नाउ डिस्टिलेशन. इट इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन. ये मेथड है जिसमें हम प्योर लिक्विड को क्या करते हैं, सॉल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं. एंड लिक्विड इज फर्स्ट बॉयल देम इनटू वेपर एंड दिस वेपर इज कंडेंस्ड टू गेट बैक वाटर. ऑब्टेन्ड लिक्विड इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म. और डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, इवोपरेशन और ये किसको फॉलो करते हैं, कंडेंसेशन. दो प्रोसेस होते हैं, इवोपरेशन और कंडेंसेशन. दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन वाटर एंड सम अदर लिक्विड इन द प्योरेस्ट फॉर्म टू बी यूज्ड इन मेडिसिन. The water you drink has some minerals dissolved in it and these minerals are necessary for body health. In order to remove both salt as well as water from the salt mixture, हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, that is known as distillation. जो प्रोसेस है आपका डिस्टिलेशन, उसका हम यूज करते हैं क्या, सेपरेट करने में लिक्विड दैट वी बॉयल एट द डिफरेंट टेम्परेचर. एंड एल्कोहल किस पे बॉईल करती है, आपको याद रखना है,
80 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे। और हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। देयर इज सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? You know that most of the solid when heated melt into liquid and form at first and then evaporate, change it into their gaseous form. But there are some solids that do not behave like that. They change directly into gaseous form on heating, skipping their liquid form. Some common example of substances are camphor. आप नैपथलीन बॉल हम कपड़ों में डालते हैं ना, आप देखेंगे वो कुछ टाइम बाद उड़ जाता है, ऐसे कपूर, ठीक है, वो क्या है? सब्लिमेशन। In scientific language, these substances are said to be sublime directly on heating. आप कपूर लेके जलाए, जैसे आप जलाएंगे तो खत्म हो जाता है। Remember that when vapor of such substance is collected and allowed to cool, it is obtained in a solid form. ये किस फॉर्म में दिखाई देते हैं आपको? सॉलिड फॉर्म में। नाउ जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। ये क्या होते हैं? डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाती, डायरेक्टली क्या होती है? चेंज हो जाती है गैसेस स्टेट में। एंड रॉक बैंड्स ऑफ्टन यूज योर स्पेशल स्टेज इफेक्ट लाइक फेक फॉग विच अकर्स व्हेन सॉलिड CO2 गेट चेंज डायरेक्टली इनटू इट गैसेस फॉर्म। जब वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है? उसकी गैस वाली फॉर्म में। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। As you have learned that when some salt is added to water and stirred, तो क्या होता है? इसे आपने ऐसे करके हिलाया तो वो क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्ट डिसअपियर हो जाता है। दिस इज बिकॉज सॉल्ट हैज डिसॉल्व इन वाटर। और सॉल्यूशन क्या होता है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 or more substances that is dissolved in another substance. So the substance which is present in smaller amount, इसको हम solute कहते हैं, and the substance which is present in लार्ज अमाउंट व्हाट इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो हम मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है? सॉल्यूशन। व्हाट इट इज कॉल्ड? सॉल्यूशन। सो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड। Saturated solution is said to be saturated when solvent can dissolve no more of a solute. जब solvent no more solute को dissolve, मतलब अब और भी solvent को dissolve नहीं कर पाता, उसको हम saturated कहते हैं। Unsaturated when it is capable of dissolving more of solute than it is already contained. Next is solubility. What is solubility? Different substances dissolved to different extent in water or any other solvent at given temperature. Like sugar dissolve in water more than common salt. ठीक है, जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है उससे जल्दी शुगर डिजोल्व हो जाता है। एंड द मैक्सिमम मास ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो उसे क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी। नाउ यू कैन सी है शुगर सॉल्युबिलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 204, कॉमन सॉल्ट 36, एमोनिया क्लोराइड 39 और सबसे कम है आपका कॉपर सल्फेट, दैट इज 23। नेक्स्ट टॉपिक इज गैस डिसॉल्व इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट। सो ऑल एरिनेटेड ड्रिंक्स कंटेन डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, एक्वेटिक प्लांट्स डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और उससे वो क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज टेकन अप बाय फिश थ्रू इट्स स्पेशल ऑर्गन, और उस स्पेशल ऑर्गन को क्या बोला जाता है? गिल्स। एंड एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव ऑन द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। देखो जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होती है ना, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो उससे ही सर्वाइव करते हैं। The solubility of gases in water decreases with rising temperature. देखो जो gases है, solubility है gases की water में, वो क्या करती है? वो decrease करती है, मतलब कम होती है जैसे जैसे temperature rise करता है, बढ़ता है। Often during summer fish in shallow ponds die. Why? Because जो water है ponds में वो warm हो जाता है due to summer heat. As a result, the amount of dissolved oxygen in water decreases and the fish in that pond died. और जो fish होती है उस pond में वो die कर जाती है, मर जाती है। So water can dissolve large number of substances, ठीक है, and therefore called universal solvents. जो आपका water है वो अपने आप में क्या है? Universal solvent है, right? Now we have completed the chapter. I have told you about the different methods of filtration, thrashing, winnowing, ठीक है, hand picking, sedimentation, decantation, filtration. Hope you understood.
Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.